Today's session is very important. If you can see what's written on the screen, it is decoding key directives in questions. Today we are going to talk about the terms, both prefix and suffix, which are being asked in your examination, and those terms become very important. My dear students, remember one thing: unless and until you don't understand the demand of the question, what the question is asked from you. If the question is asked, who is the president of India? And if you are writing, what is the procedure of president of India? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? So dear students, you have to understand कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है, because ultimately you have to understand the evaluator of the question will have a copy, will have a model answer. मॉडल आंसर पे वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं ऑर्डर में लिखे होंगे. अगर आप उसके अराउंड लिखते हो, उसके सिमिलरिटी में लिखते हो, नॉट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू राइट दोज थिंग्स व्हिच आर इन द मॉडल आंसर, बट उसके इर्द गिर्द, तो यू विल गेट दोज 50% to 60% मार्क्स व्हिच विल लैंड यू इन द लिस्ट. सो वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें समझना है कि ये डायरेक्टिव्स होते हैं क्या. गिव मी अ मोमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग. You are being asked so many things in the question. Like you are being asked sometimes comment on something. And when you have something on the end of the question, it is called a suffix. You might have read this in your English. ठीक है, ग्रामर में आपने ये prefix और suffix लिखा होगा. We have to understand that. Not only understand this thing, apart from that, we have to understand other things also. What does that mean? If it is asked like comment on India's foreign policy, then comment becomes prefix. India's foreign policy had changed from 2014. Comment on the above statement. Comment on the statement. You have to write the suffix thing here. Okay. Both prefix or suffix are directives. These are the directives which are being asked in the question. And as an aspirant, what you have to do is that you have to understand those directives, then write accordingly, which is very important. देखिए, उतना ज्यादा फर्क नहीं है इन सब चीजों में. लेट मी बी क्लियर. थोड़ा थोड़ा सा फर्क है कहीं ना कहीं, अदरवाइज कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है. बट ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन आई टॉक टू एस्पिरेंट्स कि आप आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो, व्हाई आर यू नॉट इन अ पोजीशन टू राइट आंसर्स, दे आर सेइंग सर हमें तो क्वेश्चन ही भी नहीं समझ आ रहा है, अभी बाद में लिखेंगे या अगले दिन लिखेंगे. नो, दैट शुड नॉट बी द केस. सी, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स from a book, that also is a small practice of note writing, your answer writing, which is very important. You have to write something. Eventually you have to write something. मुझे कोचिंग्स का एक अच्छा चीज क्या लगता है ना, कोचिंग जाने का मुझे जो अच्छा चीज लगता है ना, वो ये है कि वहां पे आपको डिक्टेट करके लिखाया जाता है. एटलीस्ट योर हैंड, योर मसल्स बिकम एक्वेंटेड विद दोज थिंग्स, कि नहीं कुछ ना कुछ लिखते हो. घर में थोड़ा सा लेजी हो जाता है बंदा. फिर आई एम नॉट प्रमोटिंग कोचिंग हियर, मैं ये बोल रहा हूँ अगर बंदा खुद डेडिकेटेड है, इफ ही और शी कैन राइट समथिंग एवरी डे on a daily basis, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिखना इस एग्जाम की, वो बोलते हैं ना, हार्ट इस एग्जाम का. विदाउट दैट यू कैन नॉट बी इन द लिस्ट. ये अल्टीमेट जो मेन एग्जामिनेशन है ना, वही आपका एग्जाम है. और मेन एग्जामिनेशन में आप कितना अच्छा करोगे, वही आपको लिस्ट में लाएगा. एंड इन द यूपीएससी, if your main score is very good, you can get a good service like IS and IPS. And in the state service, if your written score is good, you will land in that service. You will land because वहाँ पे pool कम होता है. In the Jammu Kashmir Public Service Commission, you will have 70 to 80 posts. 70 to 80 posts for some 1 crore population. तो उसके लिए आपको फिर वो pool है कम, तो written का score ही आपको वहाँ पे important हो जा रहा है. ठीक है. Now, if we give me a moment, हम pencil का उपयोग करेंगे. Now see, whenever it is written, first and foremost thing is, my dear students, वो जो हमें बेसिक ड्रिल हम करते हैं वो हम करेंगे पहले. इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन. डियर स्टूडेंट्स, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हम हर क्वेश्चन का लिखेंगे. वो हमें पता है, एक हमारे पास एक एसओपी है, ठीक है. यहाँ पे इंट्रो है, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे ये हमारा एसओपी है, जहाँ पे कुछ चीजों को डिफाइन किया गया है. Define what is nanotechnology and what are its applications in agriculture.
यहाँ पे डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी को करेंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। बट इन दैट पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे कमेंट है, लाइक लेट्स सी द फर्स्ट केस नाउ। ठीक है, फर्स्ट में देखो, प्लीज बियर विथ मी, क्योंकि द पेन टेब का जो मैंने सिस्टम नया लाया है इसमें आई एम नॉट येट वेरी मच फेमिलियर, कहीं ना कहीं चीज़ें इधर उधर हो जा रही है। आई एम ट्राइंग, तो एज ए लर्नर, वी आर ऑल लर्नर्स हियर, तो कहीं ना कहीं इधर इधर अगर हो जाए ना, प्लीज बियर विथ मी। तो देखिए, व्हेन कमेंट जब बता रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम फॉर द वेलफेयर स्कीम इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू मिनिमाइज करप्शन, टू मिनिमाइज, वन सेकंड, टू मिनिमाइज करप्शन, eliminate wastage वेस्टेज और फैसिलिटेट रिफॉर्म्स। इस क्वेश्चन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: मिनिमाइज करप्शन, एलिमिनेट वेस्टेज एंड फैसिलिटेट रिफॉर्म्स। आपको कमेंट बोला है कमेंट करने के लिए। व्हेन यू कमेंट, रिमेंबर, व्हेन यू कमेंट यू हैव टू टेक, यू डोंट हैव टू टेक अ बायस्ड पोजीशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ भी, आपको बायस्ड पोजीशन नहीं लेना है। एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम से वेलफेयर स्कीम का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, कैसे हम मिनिमाइज करप्शन करेंगे। यू राइट समथिंग ऑन मिनिमाइज करप्शन, हाउ वी कैन मिनिमाइज करप्शन, हाउ वी कैन एलिमिनेट वेस्ट एंड हाउ वी कैन फैसिलिटेट रिफॉर्म्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कमेंट। कमेंट्स में आप हमेशा याद रखें, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू है या रवि शास्त्री, कमेंटेटर, यू कमेंट ऑन समबडीज बैटिंग। विराट कोहली का कवर ड्राइव हमें पसंद आता है, इरेस्पेक्टिव। स्टीवन स्मिथ का टेस्ट क्रिकेट में समथिंग हमें अच्छा लगता है, उसका वो टेम्परामेंट है, इरेस्पेक्टिव आप कौन से कंट्री से हो, कहां से हो। व्हेन यू आर आस्क्ड एज अ कमेंटेटर टू कमेंट ऑन समथिंग, आप वो न्यूट्रल हो जाते हो। न्यूट्रल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, व्हेन यू राइट क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ पे कमेंट में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रिपोर्ट्स। ठीक है, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आप कहां से चीजों को लाए, एग्जाम्पल्स आप कहां से लाते हो। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की है, कैश ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक, तो डीबीटी की बात करें तो अब डीबीटी में कैसे आपको चीजें, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट की तरफ से है, कोई रिपोर्ट अगर इसके बारे में, कोई फैक्ट, कितने लोगों को निकाला है, कितने लोग उसको इंक्लूजन हुआ है, यानी कि इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितने लोगों का हुआ है, एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर, वो सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप यू डोंट टेक पोजीशन, आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे लिखते हो चीजों के पॉजिटिव्स, फैक्ट्स, फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए यू राइट दोस थिंग्स। और वो चीजें जब आप लिखते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपका आंसर बैलेंस हो जाता है। यू डोंट टेक अ पोजीशन, पोजीशन नहीं, आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर होके कोई चीज करते हो। या अगर लेट्स से कि आपने पोजीशन ले भी ली, तो फिर उसी के इर्द गिर्द आप चीजों को एक्सप्लेन करोगे। कमिट में यह चीज होगा। यू आर गोइंग टू राइट एग्जाम्पल इन फेवर, आप एग्जाम्पल लिखोगे इसके बारे में। ठीक है, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जैम जिसे बोलते हैं, जैम का एग्जाम्पल जब आप डालोगे यहाँ पे इस एग्जाम में, जब आप जनधन आधार मोबाइल का ट्रिनिटी का डालोगे, जैम का, व्हेन यू राइट जनधन जो है आपका आधार और मोबाइल का, ठीक है, जनधन का कार्ड होगा, आधार होगा, और मोबाइल ट्रिनिटी से हम जो कर सकते हैं वो। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स देखो, उसके रिपोर्ट्स होंगे, आरबीआई की रिपोर्ट होंगी, उसके एग्जाम्पल्स होंगे, वर्ल्ड बैंक का भी कुछ रिपोर्ट्स होगा कि कैसे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया उससे, राइट। तो वो रिपोर्ट्स को लिखोगे और हर इसमें फिर कंक्लूड आप करोगे पॉजिटिव और होलिस्टिक तरीके से। ये आपका एग्जामाइन हो गया, ये आपका कमेंट हो गया, राइट। नाउ सेकंड थिंग इज क्रिटिकली कमिट। अब क्रिटिकली कमिट में क्या हो रहा है ना, यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू क्रिटिकली से समथिंग, क्रिटिकली डजंट मीन कि आपको नेगेटिव ही बोलना है। क्रिटिकली मीन यू से बोथ इन द क्रिटिकली कमिट, यू डू वन थिंग, यू डू बोथ प्रॉस आल्सो एंड कॉन्स आल्सो। आप प्रॉस और कॉन्स दोनों बता दें। लेट्स से कि ठीक है कि जनधन, उसी वाले क्वेश्चन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर में, कि इसमें अगर क्रिटिकली कमिट होगा, यहाँ पे कमेंट के बदले अब लेट्स से जो ये कमेंट है यहाँ पे, इसके बदले है क्रिटिकली कमिट। ठीक है, व्हेन इट इज क्रिटिकली कमिट, ओके, पेन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, दैट्स विल बी मच बेटर फॉर अस। लेट्स कीप इट ग्रीन। तो क्रिटिकली कमिट जब आपको बताया जाए ना, तो उसमें आप प्रॉस बताओगे, यू विल राइट पॉजिटिव्स, यू विल राइट पॉजिटिव्स, ठीक है, और नेगेटिव्स भी लिखोगे। और कंक्लूजन में आप पॉजिटिव पॉइंट पहले लिखोगे, फिर नेगेटिव पॉइंट लिखोगे, फिर कंक्लूड करने की कोशिश करोगे। अब इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए ना, वो लुक एट दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, यू विल राइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर होगा, देन व्हाट अबाउट दोज पीपल के जिनको आधार कार्ड नहीं बने हैं, एंड व्हाट अबाउट दोज पीपल के जिनके पास
अभी अब दो चीजें हैं, देयर आर फ्यू पीपल जिनके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, और वो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स है, अब उनको ये प्रूव करना है कि वो सिटीजन है, उनको प्रूव करना है कि वो वेलफेयर स्कीम में आते हैं, वो सारी चीजें बीपीएल और एवाई वाले कैंडिडेट्स, तो उनके लिए यहाँ पे फिर दुविधा होगी। तो आपको ये यहाँ पे समझने की जरूरत है। क्रिटिकल इवैल्यूएट में व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट you are going to write both positives and negatives, and you are going to end holistically by emphasizing on both, then give a conclusion। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बोथ साइड ऑफ द आर्गुमेंट देखिए, फाइनेंशियल आप बोलते मिनिमाइज करप्शन होगा, यू व्हेन यू टॉक अबाउट मिनिमाइज करप्शन देन अगेन यू कैन रेज अ पॉइंट, सर मिनिमाइज करप्शन तो होगा, लेकिन अगेन जिनका अभी लेट्स से कि जो आपका राशन कार्ड है जिनका नहीं बना वो कहाँ जाए, इनको राशन नहीं मिलेगा। अर्लियर तो उनको लोग जानते थे, लेट्स से कि जो राशन जहाँ पे डिपो पे आपको मिल रहा था, वो उनको दे रहा था राशन, नोइंग दैट कि दिस गाय हाँ ये यहाँ पे रह रहा है। अब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं है, बाय द टाइम इसको डॉक्यूमेंट सपोर्ट मिलेगा वो कहाँ जाएगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं अगेन वो करप्शन वाला रूट होगा, वो ब्लैक में उसको बोलेगा, जो आपका वहां पे होता है राशन डिपो वाला बंदा, उसको बोलेगा ठीक है अभी तो उसका नहीं होगा, हम कुछ करा देंगे, आप ये पैसा दे दो। अब एलिमिनेट वेस्टेज, वेस्टेज तो हम बोल रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी दोबारा आएगी, फिर अगेन कि बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा। और फैसिलिटेट रिफॉर्म क्या ये जरूरी है नहीं है, देखिए छत्तीस उड़ीसा वाला रिफॉर्म जो इसमें है कि जिन लोगों ने जीआई टैगिंग करके, उड़ीसा की जो एग्जाम्पल है, जैसे कि एफसीआई वाले चीज में जो उड़ीसा ने बहुत पहले किया था, वो जीआई टैगिंग उन लोगों ने किया था ट्रक्स को, ताकि वो वेस्टेज और प्लस जो ब्लैक मार्केट में जाता है वो चीजें उनको कंट्रोल करे, वो हमें यहाँ पे देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हमें जो पूछ रहा है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ताकि हम वहां पे हमें याद रहे। देखिए हमें कमेंट में यही करना है कि आप एज न्यूट्रल ऑब्जर्वर कमेंट कर रहे हो चीजों के बारे में, क्रिटिकली कमेंट है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को लेके चल रहे हो और एंड कर रहे हो होलिस्टिकली। अब एग्जामाइन है, एग्जामाइन के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो एग्जामिनेशन करता है, वहां पे आपको बोला विल हैव अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट देन ओनली वी विल प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, राइट। वो एग्जामाइन क्या मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरह एग्जामाइन करते हो, होलिस्टिक तरीके से एग्जामाइन करते हो चीजों को, ठीक है। तो डीपर जाते हो आप एग्जामाइन में। आप जब भी आपको एग्जामाइन बताया जाए ना, तो यहाँ पे एग्जामाइन में वेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट एग्जामाइन, यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप थोड़ा सा डीपर जाओगे, डीपर जाओगे आप कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस को भी साथ लेके चलोगे, ठीक है। एग्जामाइन में डीपर जाओगे, कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस डिटेल्स में जाओगे, वो चीजें भी साथ लेके आप चलोगे। अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे एक अच्छी चीज आपको जो समझना है वो ये है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन है, हाउ डज इलीगल ट्रांसपोर्ट और माइग्रेशन, यहाँ पे देखिए हाउ डज कैसे करता है, हाउ डज जो इलीगल ट्रांसपोर्ट और माइग्रेशन पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, एग्जामाइन द स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा जो केच वर्ड है डायरेक्टिव एग्जामाइन है, एग्जामाइन द स्ट्रेटजीज टू करब दिस, ब्रिंग आउट द फैक्टर्स, यहाँ पे ब्रिंग आउट द फैक्टर्स विच गिव इम्पेटस टू सच माइग्रेशन। डीपर जाओगे, यहाँ पे फैक्टर जो लाना है ये खुद ही बोल रहा है, आप बोलोगे कॉजेज क्या है, ये हो क्यों रहा है, थ्रेट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस बोलोगे कैसे हमारे इस पे कॉन्सिक्वेंस पड़ रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेटजीज होगा जो डिटेल में मैंने बोला, स्ट्रेटजीज आप फ्यूचर के बोलोगे कि वे फॉरवर्ड जिसे बोलते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में देखिए ब्यूटी क्या है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसलिए इजी है क्योंकि इसने बोला है, नहीं तो ये हाउ डज इलीगल ट्रांसपोर्ट माइग्रेशन फॉर द थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी एग्जामाइन, अगर एग्जामाइन ही सिर्फ होता ना वर्ड, तब भी आपको ये चीजें लिखनी है, क्योंकि एग्जामाइन में आपको याद रखना है, इन द एग्जामाइन व्हेनेवर द वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स इज एग्जामाइन, you have to understand, you have to go deeper, you have to understand the causes of that particular thing, what are the consequences also, what are the details also, आपको एक होलिस्टिक तरीके से वो सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, नॉट ओनली अंडरस्टैंड करना है, प्लस यू हैव टू गिव अ वे फॉरवर्ड आल्सो व्हिच शुड बी होलिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जामाइन और एनालिसिस में फर्क यह है कि एग्जामाइन जो है ना वो थोड़ा डीपर है कमेंट से। यहाँ पे देखिए एग्जामाइन, यहाँ पे अगर कमेंट है ना पहले, उसके बाद एग्जामाइन है, और उसके बाद आपका एनालिसिस है, ये तीन चीजें। पेन को चेंज करते हैं, लेट्स वेट। तो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना, तीन चीजें हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। कमेंट आप कमेंट करते हो, एग्जामिन में थोड़ा होलिस्टिक जाते हो, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हो, डीप डाउन डाइव करते हो, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हो। लेट्स से कि एग्जांपल किसी बंदे का बुखार हो गया, तो डॉक्टर हमें बोलता है कि कब से हुआ, क्या खाया आपने, फ्रीक्वेंट है क्या,
हिस्ट्री है खानदान में क्या, बुखार का कोई, या बुखार अगर फर्दर लेगा आपको माइग्रेन की तरह, खानदान में किसी को प्रॉब्लम तो मत है, उसके बाद इवॉल्यूट करते हैं आप 5-6 दिन ये दवा ले लीजिए, उसके बाद आप ये हो जाए, क्योंकि वो एग्जामाइन करता है आपके पूरे चीज़ों को, कि आपको क्रिटिकल फैक्टर्स भी है कि ये किस किस वजह से हुआ, व्हाई दिस हैपन, इसके काजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या होगा। वे फॉरवर्ड में आपको लेट्स से कि आपको ये मेडिसिन खाना पड़ेगा, ठीक है, डोलो 650 खा लीजिए वेन एवर यू फील इट, या आप पैरासिटामॉल खा लीजिए, ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। एग्जामाइन में थोड़ा डीपर जाओगे, कमेंट में कोई पोजीशन लोगे, उसको उस पोजीशन को डिफाइन करोगे, उस पोजीशन को आप फेवर करोगे, उस पोजीशन को आप फिर एक्सप्लेन करोगे, तो उसके पॉजिटिव्स बता के, ठीक है। अब क्रिटिकली एग्जामाइन में थोड़ा सा हम और जाते हैं, जिसमें हम अब वीकनेसेस भी बताते हैं। जहां पे हम क्रिटिकली एग्जामाइन में जाते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन जब होगा, इन द क्रिटिकली एग्जामाइन आप थोड़ा वीकर जाते हैं, आप स्ट्रेंथ्स भी बताते हैं और वीकनेसेस भी बताते हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव्स भी देखते हैं उसमें। उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप ये चीजें बता रहे हो, आपको समझना है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जब बताओगे आप, तो उसमें बताना पड़ेगा क्रिटिकल एग्जामिन क्या हुआ। जो मैंने अभी बात बोली डॉक्टर वाली, वो फैमिली हिस्ट्री की बात यहाँ पे आती है, कि वेदर देयर वाज समबडी इन योर फैमिली जिसका ये था, लेट्स से कि डायबिटीज के लिए जाते हैं, या आपको भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए वो हो रहा है क्या, वेदर यू आर एलर्जिक टू समबडी, सम मेडिसिन के लिए आप एलर्जिक हो, खानदान में कोई हिस्ट्री है ऐसी, ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रिटिकली एग्जामाइन में यू आर गोइंग टू ऐड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब यहाँ पे आप बताओगे कि स्ट्रेंथ क्या है, बॉर्डर जो ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन का, ठीक है, उससे हमारा वीकनेस क्या होगा, नेगेटिव उसके क्या है, नेगेटिव इसके क्या है कि यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कॉस्ट अस, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है इवॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1921 ऑफ लेनिन हैड इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया सोन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि लेनिन की जो पॉलिसीज है 1921 वाली, वो इंडिया ने बाद में अडॉप्ट की थी इंडिपेंडेंस के बाद, इसको आपको इवॉल्वेट करना है। इवॉल्वेट में आप बहुत साइड देखते हो, ठीक है, बहुत साइड देखते हो, उसके बाद उसके यूजफुलनेस बताते हो। इन द इवॉल्वेट यू अंडरस्टैंड, जैसे इवॉल्यूशन होता है मेरे पेपर का, आप इवॉल्वेट कीजिए, मुझे आप फीडबैक दीजिए, तो आप बहुत साइड देखते हो, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव भी इवॉल्वेट में। आप पॉजिटिव्स भी देखते हैं, जैसे कि लेनिन की इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉजिटिव्स क्या थे, जब स्टेट वेलफेयर स्टेट बनेगा, स्टेट ही रहेगा जिसके पास मोनोपोली रहेगा फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो वो पॉलिसी जब इंडिया ने बताई, तो इसका इवॉल्वेट करना है आपको, इंडिया ने कैसे वो पॉलिसीज की। जब हमारा 5 ईयर प्लान है, स्टेट स्पेसिफिक प्लानिंग होगा, ठीक है, जो हमारे 5 ईयर प्लानिंग है वो उसी से इन्फ्लुएंस से, वो हमें बताना है, ठीक है। इसमें हमें इवॉल्वेट में हम वी डू दैट थिंग, तो आपको ये बताना है कि क्यों कर रहा है ऐसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द इवॉल्वेशन यू आल्सो टॉक अबाउट व्हाई दे डिड इट, तो वो आपको उसमें बताना। इन द इवॉल्वेशन यू ट्राई टू आंसर द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच हैज बीन टेकन, एंड उसके लिए यू डू एग्जांपल्स by the readings, जो आपने रीडिंग्स की होगी, you have read some reports, you have read some recommendation, you have read some books, जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है इवॉल्व में, आपको वहां पे आपने जो आर्ग्यूमेंट का, उस आर्ग्यूमेंट को आप उससे आंसर करते हो। आई होप दिस इज क्लियर। इवॉल्व में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू इवॉल्वेट द थिंग्स कि उसका मीनिंग क्या है, यूजफुलनेस क्या था उसका, कि व्हाई इंडियन देन फेल्ट कि नहीं हमें वो वाला करना पड़ेगा, तो उसके 2-4 पॉइंट्स पॉजिटिव दोगे हो, वो नेगेटिव भी दोगे, उसके बाद बोलोगे कि इंडिया ने कैसे किया, प्लस इसका भी वही एंड पे आप कंक्लूजन वही लिख सकते हो, ठीक है। अब जो एनालिसिस वाला पार्ट है, हमने जो बोला एनालिसिस वाला पार्ट, जो अभी हमने बोला, एनालिसिस गोज डीपर देन योर कमेंट एंड योर, जो हमने अभी बात की थी, एग्जामाइन, एग्जामाइन और कमेंट से एक स्टेप आगे। उसको एनालिसिस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनालिसिस वाला जब भी रहेगा, प्लीज अंडरस्टैंड इन द एनालिसिस पार्ट आपको हमेशा कुछ चीजों को ख्याल रखना है। एनालिसिस में आप लेट्स से कि कोई टॉपिक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, द राइजिंग, इंडिया इज अ राइजिंग पावर इन द वर्ल्ड एंड देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स इन यूएन, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। when you are analyzing the statement, you are breaking the statement, remember,
breaking their statement into different components. ठीक है, अब आप अपने स्टेटमेंट को डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर इन द एनालिसिस पार्ट. ठीक है, आप एनालिसिस को डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स को ब्रेक करते हो, उन कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स को एनालाइज करते हो. लेट्स टेक यू व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, देन यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, हम कितना ग्रो हो रहा है. देन यू टॉक अबाउट पॉलिटी ऑफ इंडिया, क्या इलेक्शन कैसे हमारी मशीनरी है. यू टॉक अबाउट टेक में हम कितना आगे, नंबर ऑफ पेटेंट बीन फाइल्ड. एनालिसिस में हमेशा देखो जो पेस्टल अप्रोच है ना आपका, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, लीगल, वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो. In the analysis part, you can give various perspectives of a particular question by having different constituents of that particular question. उन constituents को आप explain कर सकते हो. ठीक है, that is your analysis part. And in the discuss part, discuss में क्या कर रहे हो आप? Discuss में again, I said earlier also कि इन सब में आपको उतना difference नहीं है, लेकिन you have to understand those कि कहीं ना कहीं कभी वो गलती ना हो जाए. In the discuss में you discuss about something, let's say discuss the foreign policy of India. ठीक है, यहाँ पे हम in the discuss part you will always write like strengths उस चीज की, weaknesses क्या है, opportunities क्या है और threats क्या है उसके. ठीक है, डिस्कस में आप होलिस्टिक तरीके से सारी चीजों को लिखोगे. ठीक है, और सोल्यूशन और कंक्लूजन जो देंगे वो भी होलिस्टिक होगा. डिस्कशन में सारी चीजों को आप मद्देनजर रखोगे. discuss how demographic dividend of India is paying in the economic transition of India. तो उसमें लिखोगे स्ट्रेंथ भी क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या कर रहा है, उनके थ्रेट्स भी क्या है. ये भी एक थोड़ा सा 2-3 लाइन आप लिख सकते हो. ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, नाउ वी हैव लाइक 1-2 थिंग्स मोर. लाइक इनॉमरेशन इज क्वाइट इजी, ये आपको धीरे धीरे समझ आना चाहिए. डायरेक्ट इनॉमरेशन में क्या होता है ना, इट्स अ नंबर सिस्टम. लाइक आप पॉइंट्स लिखते हो 1 2 3 4, पॉइंट नंबर 1 ये हो, पॉइंट नंबर 2 ये. ठीक है, तो इनॉमरेशन में आप यूजुअली पॉइंट्स लिखते हो. आप बाकी जगहों पर भी आंसर अपने पॉइंट्स में कर सकते हो. लाइक टेक्नोलॉजिकल पार्ट में आपने 2 पॉइंट लिखे, इकोनॉमिक पार्ट में 2 पॉइंट लिखे, लीगल में 2 पॉइंट लिखे. इनॉमरेशन में यूजुअली आप पॉइंट्स में आंसर इनॉमरेट में करते हो. ठीक है, अब इन द जस्टिफिकेशन पार्ट जो 9 वाला है, यू जस्टिफाई क्वेश्चन, जस्टिफाई दैट ब्रिटेन, जस्टिफाई में जो क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन जो आया था, जस्टिफाई दैट जर्मनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर. आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हो कि कैसे जर्मनी उसके लिए जिम्मेदार है. राइट, टेक एन आर्ग्यूमेंट. जब आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हो कि जर्मनी है, फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन में आपको बताना पड़ेगा क्यों आपको लगा. लेट्स से कि तब हिटलर की पॉलिसी की वजह से ये हुआ, प्लस जो उनके चीज़ है, ठीक है, रेन ऑफ टेरर हो गया, या उनका जो भी है ब्लिट्जक्रिग हो गया, उनकी वजह से चीज़ें हो गई. आपको वो सारे पॉइंट्स उसमें लिखने हैं. एंड इन द डिफरेंशिएट, यू नो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. लेट्स से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को. तो आप डायरेक्टली इसके कुछ पॉइंट्स और इसके कुछ पॉइंट्स लिखोगे. ठीक है, अब यहाँ पे जब एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, एक्सप्लेन में यही होता है कि आप मुझे कभी बोलोगे सर आप एक्सप्लेन कीजिए व्हाई देयर इज राइजिंग इनटॉलरेंस इन सोसाइटी. ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए. तो उसमें आप सारी चीजों को लिखते हैं. आपके पास एक्सप्लेन में, अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, एक्सप्लेन में इंपॉर्टेंट आपका रीजन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बैक होना चाहिए किसी डाटा पॉइंट के साथ, फैक्ट्स के पास. ठीक है, आपका क्लियर होना चाहिए. ये यहाँ पे आप बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर सकते. यू शुड बी हैविंग ए क्लियर कट, कुछ डेटा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि जो एक्सप्लेन में इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज भी आप याद रखिए, तो जो WH क्वेश्चन है ना, व्हाट, हाउ, व्हाई, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देखिए, while we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rate of employability. Again, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में कौन से एज ब्रेक है. आप ऐसे नहीं डाल सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है. तो आपको एज ब्रेकेट होगा जो लेट्स से कि जो इसमें है 60 ईयर्स तक से लेकर 15 ईयर्स तक जो बच्चे उस एज ब्रैकेट में आते, जो काम करने वाले हैं, जो काम करेंगे, और इग्नोर करे अनएम्प्लॉयमेंट. और फिर बताना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट रेट इस जो 10-20 जो हमारा डेकेड था, जिसको हम बोल रहे थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला ये डेकेड्स हमारे आने, उनमें बताना पड़ेगा कि कैसे हुआ. वो फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है.
तो व्हाट आर वी मिसिंग बाय डूइंग सो, तो हम मिस क्या करें, लेट्स से कि स्किल डेवलपमेंट हम मिस करें, तो वो क्लियर बताना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट से कोई अगर रिपोर्ट है, लेट्स से कि आपका वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, या आपका नीति का रिपोर्ट है कोई, ठीक है, या आरबीआई की कोई रिपोर्ट है, या स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कोई, कि अगर इंडिया स्किल डेवलप करेगी अपने यूथ को, तो वी आर गोइंग टू एड दिस मच ट्रिलियन इन आवर इकोनॉमी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सप्लेन में। आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चन बताना पड़ेगा, प्लस उसके साथ साथ आपको जो भी चीज बताओगे उसको क्लियर होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बैक इट विथ सम डेटा पॉइंट, सम डेटा, डेटा, पॉलिसी पेपर, जो भी आपका रीजनिंग जो भी दोगे उसका कोई डाटा पॉइंट होना चाहिए साथ में। एक्सप्लेन में ये हम कभी कभी गलती करें, हम अराउंड द बुश करते हैं, कुछ भी चीजें करें, जब हमें एक्सप्लेन करने को बोला जाए वी शुड हैव थिंग्स बेस्ड बाय फैक्ट्स, तब हमारी चीजें जो है फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स के बेसिस पे होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एलुसिडेट में क्या है कि एलुसिडेट में जो चीज है वो इंपॉर्टेंट क्या है, एलुसिडेट में यू हैव समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग, ठीक है, कंफ्यूजिंग सा दिया गया वो चीज, नॉट नेसेसरी कि कंफ्यूजिंग हो, कंफ्यूजिंग सा दिया गया एंड दे वांट यू टू क्लियर इट। क्लियर कैसे करोगे, जब उसके बारे में आप अच्छे से बोलोगे, अगेन वही डेटा पॉइंट्स दोगे, आपके एग्जाम्पल्स दोगे, काजेस दोगे, वे फॉरवर्ड में कैसे लिखोगे, वो आपका एलुसिडेट में हो जाता है, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, पहले ये पता होना चाहिए विच इज इंडियाज ओन इनोवेशन हैज प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम एलुसिडेट। ये कंफ्यूजन सा स्टेटमेंट को आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें डाटा पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि कैसे हुआ, हाउ मेनी वुमेन हैव बीन इंक्लूड इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वर्किंग देयर, ठीक है, मिनिस्ट्री कौन है इसका रिलेटेड, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको जरूरी है। इसको कंफ्यूजन से स्टेटमेंट को आपको चाहते हैं कि आप उसमें अपनी जो राय है ना मोर क्लियर करें। मोर क्लियर आप कैसे करोगे, व्हेन यू हैव द इंपॉर्टेंट नॉलेज, इंपॉर्टेंट बेकिंग ऑफ द नॉलेज, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबस्टेंशिएट में आपको यूजुअली क्या बोला जाता है, इन द सबस्टेंट पार्ट यूजुअली क्या बोला जाता है कि आपको बोला गया कि आप अपनी जो एक पोजीशन ले रहे हो ना उसको आप जस्टिफाई करो, ठीक है। आप कोई जस्टिफाई करो किसी को, लेट्स से कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, बार बार मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया इज अ राइजिंग पावर इन द वर्ल्ड सबस्टेंट डिसऑर्डर में, तो राइजिंग पावर की जब बात करोगे यू हैव टू टॉक अबाउट जो हमने हाल फिलहाल में G20 किया, ठीक है, हाल फिलहाल में हम जो ग्रुप्स के मेंबर हैं, यूएन की कमिटीज में हमारा जो रोल है, आप कोविड में हमारा जो रोल रहा, ठीक है, यूएन रिफॉर्म्स में हमारा रोल, हम इनिशियल मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है यूएन के, आपको ये सब चीजें बताने पड़ेगा अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग के इस सेशन में आई फेल्ट इट इज नेसेसरी दैट आई टेल एस्पिरेंट्स की जो ये टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम स्पेशली कुछ चीजें जैसे कमेंट हो गया, आपका एक्सप्लेन हो गया, आपका एग्जामाइन हो गया, और क्रिटिकली जिनमें आता है, ठीक है, और इलुस्ट्रेट हो गया, इनका थोड़ा सा टर्म्स आपको पता होने चाहिए। डिस्कस में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, टोज आपके प्रोज कॉन्स सारी चीजें पता होना चाहिए, और वो होना चाहिए। कमेंट में आप कोई पोजीशन लो उसको जस्टिफाई करो, ठीक है, एग्जामाइन में दोनों चीजें करो, फिर एग्जामाइन में पोजीशन लो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को देखो, पहले डीपर जाओ, और एनालिसिस में फर्दर डीपर जाओगे, हर पॉइंट को ब्रेक करोगे उसके बारे में उसको लिखोगे। आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी जो यूपीएससी एसेंशियल्स की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज हम अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आए, तो हम चाहते हैं कि स्मार्ट वे में आपकी जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।